اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج ایکسیلنس آن لائن کے پلیٹ فارم سے میں انجینئر امین عادل آپ کی خدمت میں۔ آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، چاہے آپ میڈیکل کالج کا ایڈمیشن ٹیسٹ دے رہے ہوں یا کسی انجینئرنگ یونیورسٹی یا انجینئرنگ کالج کا ٹیسٹ دے رہے ہوں، تو اس ٹیسٹ میں ایم سی کیوز کو سالو کرنے کا میتھڈ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز کم سے کم ٹائم میں کیسے سالو کرنا ہے، ایم سی کیوز سالو کرنے کے کیا ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ہیں، یہ آج ہماری ویڈیو کا بنیادی مقصد ہے۔ اکیڈمی آف ایکسیلنس کا آغاز 9 نومبر 1990 کو کیا گیا اور 1990 سے لے کر آج تک تقریباً 31 سال ہو چکے ہیں۔ اکیڈمی آف ایکسیلنس کے پلیٹ فارم سے بہتر اور کوالٹی ایجوکیشن کی خدمات دی جا رہی ہیں۔ اس کووڈ-19 کی سچویشن میں بھی اکیڈمی آف ایکسیلنس نے فزیکل کلاسز جب ممکن نہ ہو سکیں تو ایکسیلنس آن لائن کے پلیٹ فارم سے آن لائن لیکچرز اکیڈمی کے تمام کیمپسز سے آن لائن لیکچرز دیے گئے۔ آن لائن لیکچرز کو ریکارڈ کر کے طلباء و طالبات کو بھیجا گیا اور یہاں تک کہ ایپٹیچیوڈ اور ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کی کلاسز بھی آن لائن ہوئیں، اور آج آن لائن ہی آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایکسیلنس آن لائن کے پلیٹ فارم سے، تاکہ آپ کو ایم سی کیوز کے سلوشن میں کسی قسم کی مشکل نہ رہے۔ ہمارا فیس بک پیج ہے ایکسیلنس آن لائن کے نام سے، اس کو جوائن کیجئے، اس کو لائک کیجئے۔ مختلف قسم کے آرٹیکلز، مختلف قسم کے ویڈیوز اور مختلف قسم کی انفارمیشن ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایکسیلنس آن لائن کا ایک یوٹیوب چینل موجود ہے، یہ ویڈیو بھی آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گی، فیس بک پہ بھی مل جائے گی۔ اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل فون موجود ہے تو آپ وہاں گوگل پلے کے ذریعے آپ ہماری ایکسیلنس آن لائن کی اپلیکیشن بھی انسٹال کر سکتے ہیں، جس پر یہ تمام لیکچرز اور تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی مہیا کی جا سکیں گی اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کا جو مین آبجیکٹیو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ٹو گیٹ ہائی اسکور ان ایڈمیشن ٹیسٹ اور aptitude test, whether you are going to appear in MDCAT or you are going to appear in ECAT test۔ سلائڈس کو دیکھیے گا، مختلف قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کی پریپریشن کیسے کی جائے، تو یاد رکھیے گا there is no alternative of the preparation۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ بس یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور تیاری مت کیجئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پریپریشن کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس شارٹ کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ پریپیئر ویل، بہت اچھی طرح تیاری کیجئے، تمام کلاسز لیجئے، چاہے وہ فزیکل کلاسز ہوں، چاہے وہ آن لائن کلاسز ہوں۔ اپنی بکس پڑھیے، جو آپ کی ٹیکسٹ بکس ہیں فرسٹ ایئر کی اور سیکنڈ ایئر کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، میتھمیٹکس کی، بایولوجی کی، انگلش گرامر کی اور کمپوزیشن کی، کمپریہنشنز کی بکس کو پڑھیے اچھی طرح سے، ہائی لائٹر ہاتھ میں لے کر پڑھیے، امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیجیے اور نیکسٹ ٹائم ان کو آپ ریوائز صرف ہائی لائٹڈ پوائنٹس کو کیجیے۔ جو بکس آپ کو اکیڈمی آف ایکسیلنس کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہیں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کی، بایولوجی کی بکس ہیں، کیمسٹری کی بکس ہیں، فزکس کی بکس ہیں، انگلش کی بکس ہیں، میتھس کی بکس ہیں، وہ آپ پڑھیے، بکس کو ریوائز کیجیے۔ جتنے ٹیسٹ کلاس میں ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ دیجئے، جتنے آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ دیجئے، موک ٹیسٹ جو ہوں گے آپ کے لاسٹ فائنل، ان ٹیسٹ میں ضرور اپیئر ہو جائیے، اس لیے کہ ریہرسل جب آپ اچھا کرو گے تو پرفارمنس آپ کی بہت بہتر ہوگی۔ یاد رکھیے گا، پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ جو ایک فری ٹیسٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کو بھی بار بار آپ ریہرسل کیجئے، کیونکہ آن لائن ٹیسٹ، ڈیجیٹل ٹیسٹ میں آپ کی پریپریشن اچھی جبھی ہوگی جب آپ بار بار آن لائن ٹیسٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ جو ایکسیلنس کی طرف سے دیا جائے گا وہ دیجئے، تمام پاس پیپرز کو سالو کیجئے۔ ہم نے پاس پیپرز بھی آپ کو پرووائڈ کر دیے ہیں سلوشن کے ساتھ، اور ٹیچرز پاس پیپرز کو ایکسپلین بھی کریں گے اپنی کلاسز میں، کر بھی رہے ہیں، تو وہ سارے پاس پیپر کو آپ سالو کر کے جائیے گا۔ اور تمام سبجیکٹس کو ٹائم دیجئے، انگلش کو بھی ٹائم دیجئے، لاجیکل ریزننگ کو بھی ٹائم دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ تمام سبجیکٹ کو ٹائم دیں گے اور تمام سبجیکٹ کی پریپریشن بہت اچھی ہوگی تو آپ کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% پریپریشن ہے۔
अब आइए वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान अगर किसी ज़हीन बच्चे के जहन में होती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है और 100% स्कोर करता है और मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने की कोशिश करता है। यूज़ दिस टिप्स एंड टेक्निक्स, ये टिप्स और टेक्निक्स जो आपको बताई जा रही हैं इनको इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए। बाज़ औक़ात आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स, कुछ बातें आपको नहीं पता होती हैं जिसकी वजह से स्कोर आपका ख़राब हो जाता है और वो एमसीक्यू आप कर सकते थे, आप इसमें स्कोर कर सकते थे, आप उसको या तो छोड़ देते हैं या नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। बहरहाल नेगेटिव मार्किंग तो इस दफ़ा नहीं है, ना एमडी केट में है और ई केट में भी सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नेगेटिव मार्किंग करती हैं और मेडिकल कॉलेज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप इन टिप्स को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये देखा गया है कि अगर आप इन टिप्स को इस्तेमाल करेंगे, ये टेक्निक्स आपके जहन में रहेंगी तो आपको कम से कम 25 to 30 मार्क्स आपके ज़्यादा आ सकने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, ये आप जब आगे जाके देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका स्कोर 70% है तो फिर आप 70 के बजाय 85% स्कोर कर सकते हैं इन टिप्स को, इन टेक्निक्स को जहन में रखकर। लिहाजा जब आप 15% 15% आगे चले जाते हैं तो आप कम से कम 400 to 500 स्टूडेंट्स को बीट करके उनसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए कि मेडिकल कॉलेज में कोई 80,000 70,000 80,000 और बाज़-औक़ात लाख 1 लाख स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए और इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए प्लानिंग क्या की है। सबसे बड़ी चीज़ होती है प्लानिंग। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर प्लानिंग फॉर द फेलियर, ये आपने सुना होगा। सो स्टडी अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी ऑफ एब्सॉर्प्शन। प्लानिंग, आपका शेड्यूल ऐसा बनाएं कि वो शेड्यूल पे आप फोकस कर सकें, उस शेड्यूल पे आप अमल भी कर सकें। ऐसा शेड्यूल ना बनाएं जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। यानी मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि मैं कल से 8 घंटे सोऊंगा और 16 घंटे सिर्फ पढ़ाई करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा, आपको रिफ़्रेश भी होना पड़ेगा, आपको अदर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो शेड्यूल बनाइए अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से और अपने एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। एंड कंट्रोल योर नर्व्स। डू नॉट स्टडी बिफोर फ्यू आवर्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। याद रखिएगा, जब एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला हो तो इससे पहले आप कोई चीज़ ना पढ़ें, ख़ास तौर पे कोई नई चीज़ तो बिल्कुल मत पढ़ें। इसलिए कि माइंड वर्क्स लाइक ए स्टोर रूम, और स्टोर रूम के लिए एक रूल ये है कि वॉट एवर यू पुट इन द स्टोर रूम एट द एंड व्हेन यू ड्रैग समथिंग यू विल गेट इट फर्स्ट। जो कुछ सबसे आखिर में डालते हैं वो ढूंढते वक्त सबसे पहले आपको मिलता है। लिहाजा नई चीज़ें आपके जहन के सतह पे रह जाएंगी, सरफेस पे रह जाएंगी और फिर आपको जो याद चीज़ें होंगी वो गुडमिट हो जाएंगी। लिहाजा कोई नया टॉपिक आखिर टाइम में उठाना बेहतर नहीं होता और उसमें आपके स्कोर कम होने के चांसेस होते हैं। रिवाइज़ ऑल द क्लास लेक्चर्स। तमाम क्लास लेक्चर को रिवाइज़ कीजिए, टिप्स एंड टेक्निक्स को रिवाइज़ कीजिए, जो कुछ आपने बुक्स में पढ़ा था उसको रिवाइज़ कीजिए और क्लास में जो डिस्कशन हुई थी उनको भी अपने जहन में दोहराइए। कंट्रोल योर नर्व्स, ख़ास तौर पे जब क्वेश्चन पेपर बहुत इजी हो। अगर एमसीक्यूज़ बहुत इजी हैं तो आप इनको इजी मत लें, इसलिए कि इजी एमसीक्यूज़ में ट्विस्ट होता है और उसको सॉल्व करना बाज़ औक़ात ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। याद रखिएगा, बहुत सारे जीनियस बच्चे एग्ज़ाम के दिन बीमार हो जाते हैं क्योंकि टेंशन ले लेते हैं और इस टेंशन की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लिहाजा हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ना ज़्यादा खाना खाइए ना कम खाइए और पानी पिए ताकि हाइड्रेटेड रहें। एग्ज़ाम देते वक्त और तैयारी करते वक्त अपने मोराल को बहुत हाई रखिए। यू कैन डू एवरीथिंग, ये वाला मोराल रखिए और कभी भी मत सोचिए, नेगेटिव बातों को जहन में मत रखिए कि मुझसे सॉल्व नहीं हो सका या मुझसे कोई एरर हो गया तो, और मेरे साथ के जो क्लास फेलोज़ हैं उनको टेस्ट में पता नहीं कौन से क्वेश्चन आ गए और मुझसे आगे बढ़ गए तो। इसलिए कि जो डिजिटल टेस्ट होने वाला है इन सब के पास एमसीक्यूज़ अलग अलग आएंगे। ठीक है ना। जिन अलग अलग डेट्स में आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, सारी डेट्स में क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे।
तो हो सकता है कि किसी एक ग्रुप को कुछ क्वेश्चंस आसान मिल जाएं और किसी एक ग्रुप को क्वेश्चन मुश्किल मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप सोचे भी नहीं। इसलिए कि जो पीएमसी ने डिफ़िकल्टी का परसेंटेज लेवल बताया है कि उसमें इजी कितने होंगे, मॉडरेट कितने परसेंट होंगे और हार्ड कितने परसेंट होंगे, तो उस परसेंटेज को हर टेस्ट में फॉलो किया जाएगा। लिहाजा जहन में ये रखिए, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एंड जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। आपका मोराल इस बच्चे की तरह होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, एंड यकीन मानिए यू कैन डू इट। अगर आपकी मेहनत अच्छी की है, आपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखा है, आपने अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा रखा है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखा है, आपको अपने आप पे एतमाद है, तो आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम, बड़े से बड़े इम्तिहान से, चाहे वो इम्तिहान आपका एजुकेशन का हो या ज़िंदगी का कोई इम्तिहान हो, उसमें कामयाब हो सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देखिए, एमडी केट में आपको 210 एमसीक्यूज़ पूछी जाएंगी, जिसमें 68 एमसीक्यूज़ बायोलॉजी की हैं, 56 एमसीक्यूज़ फिज़िक्स की, 56 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री, 20 एमसीक्यूज़ इंग्लिश की और 10 एमसीक्यूज़ लॉजिकल रीजनिंग की पूछी जाएंगी, जिसके 6 पार्ट हैं। 6 किस्म के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस 6 किस्म के पूछे जाएंगे और टोटल क्वेश्चंस की तादाद होगी 10। इस तरह अगर आप टोटल करते हैं तो 210 एमसीक्यूज़ हैं और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3.5 घंटे। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ 3.5 घंटों का मतलब भी 210 मिनट ही होता है। तो 210 मिनट में 210 एमसीक्यू सॉल्व करनी है। यूँ समझ लीजिए आपको 1 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करनी है, लेकिन अपने जहन में मत रखिएगा कि 1 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करनी है, इसलिए कि एमसीक्यू आप जब उसको पिछले एमसीक्यू को सॉल्व करके जब क्लिक करेंगे ओके पे, तो नई एमसीक्यू आपके सामने आएगी। आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बाज़ औक़ात क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, 4 to 5 लाइंस के क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चंस को पढ़ना भी है, उनको समझना भी है, इनके 4 ऑप्शंस को भी देखना है और फिर ढूंढना है अपने जहन में जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन है और फिर फैसला करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लिहाजा इसमें टाइम लगता है। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग वो जो रीडिंग करते हैं क्वेश्चंस की, इसमें आधा मिनट तो इसी में लग जाता है, बल्कि आधे मिनट से भी ज़्यादा लग जाता है, और इसके बाद सोचना कि कौन सा आंसर सही है। तो याद रखिएगा ये 1 मिनट कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है, आपको इसके लिए तैयारी करनी है। और करना यूँ है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं और जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो आप आधे मिनट में या 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, और ये टाइम आपको काम आएगा डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है। अगर ईकेट की बात करें तो एनईडी का जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज़ हैं, फिज़िक्स के 25 एमसीक्यूज़ हैं, केमिस्ट्री के 25 और मैथमेटिक्स के भी 25। इस तरह चारों सब्जेक्ट से 25 टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, 100 मार्क्स के, और आपको 1 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना एनईडी में ना एमडी केट में। कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ये पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ जीके के जो है सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, आईक्यू और जनरल मैथ्स के सब्जेक्ट्स भी, क्विक मैथ्स के सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आईटी के भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाएंगे। लिहाजा इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर कॉलेज में अपना एक पैटर्न और तरीका है जो उनके प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना चाहिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर मौजूद है तो आप पहले फिज़िक्स को सेलेक्ट करते हैं, केमिस्ट्री को करते हैं, बायोलॉजी को करते हैं, या इंग्लिश को, या लॉजिकल रीजनिंग को। तो यहाँ इसका जवाब ये है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का मौका तब होता है जब आप फिज़िकल पेपर पर दे रहे होते हैं, तो उस वक्त आप पेपर्स को टर्न करके किसी भी सब्जेक्ट पे कभी भी जा सकते हैं, और उस सब्जेक्ट को आप पहले करें जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है। इसलिए कि शुरू में आसान क्वेश्चंस करने से क्या होता है, आप स्कोर करते चले जाते हैं, आपके क्वेश्चंस अच्छे होते चले जाते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाता है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर बेस्ड
जो आप इस वक्त करने चले जा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे, ओके करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आता चला जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस का पैटर्न इसी तरह हो कि पहले फिज़िक्स के और फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। ये मिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि एक फिज़िक्स का क्वेश्चन आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, फिर लॉजिकल रीजनिंग आ गया, फिर बायोलॉजी आ गया। लिहाजा आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। सब्जेक्ट सिलेक्शन का यहाँ चांस नहीं रहता। हाँ, ये ज़रूर कीजिए कि जो एमसीक्यू इजी है इसको करते चले जाइए, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा, टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्किप करते जाइए। इस तरह क्या होगा, 210 एमसीक्यूज़ में जब आप 150, पौने 200, 175, 180 एमसीक्यूज़ कर लेते हो, और फिर डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ आपने छोड़ दिए हुए हैं, स्किप किए हुए हैं, उनकी तरफ आते हैं, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, आपका मोराल भी बूस्टअप हो चुका होता है कि मैंने अच्छे खासे एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से अब आप रिलैक्स होते हो, आपका माइंड भी वर्क कर रहा होता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोराल हाई होता है, और वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फिर आप जब सॉल्व करने जाते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। याद रखिएगा, अब हम आते हैं टिप्स एंड टेक्निक्स पर। जब आप एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी एप्टीट्यूड एडमिशन टेस्ट जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें 4 किस्म के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। नंबर 1 टाइप ए, दे आर वेरी इजी टाइप ऑफ एमसीक्यूज़, बहुत आसान एमसीक्यूज़ होते हैं, इनको सॉल्व कीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, ये आपने पढ़ा, आपको समझ आ गया, 4 ऑप्शंस में आपको पता है ये सही है, क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़्यादा आसान नज़र आने वाला क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता, इसमें कोई ट्विस्ट तो नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ख़ास तौर इस किस्म के क्वेश्चंस में आप ये देखिए, समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क नॉट ट्रू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे एग्जांपल है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, और देखिए नॉट बिल्कुल स्मॉल में लिखा हुआ है और ट्रू कैपिटल में लिखा हुआ है। अक्सर बच्चा जल्दी में सिर्फ ये पढ़ लेता है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, और फिर वो 4 ऑप्शंस को पढ़ता है। ऑप्शन ए, सिंध इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। ऑप्शन बी, बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, वो ट्रू मिलता है, बी को क्लिक कर देता है, क्योंकि तो ट्रू है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब आइए सी देखें, पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, ये भी ट्रू है। बलूचिस्तान इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, ये भी ट्रू है। तो ए जो है, सिंध इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से सिंध सबसे बड़ा सूबा है, ये ट्रू नहीं है, गलत है। तो जो ट्रू नहीं है दैट इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ ऑप्शन ए को आप क्लिक करेंगे। लेकिन जिन्होंने नॉट को अहमियत नहीं दी होती है, और डॉज देने के लिए क्वेश्चन पेपर में नॉट स्मॉल लेटर में गिवन होता है, इतना छोटा लिखा होगा कि आपको नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बात यह है कि समझना है, आसान को इतना आसान मत समझिए, क्योंकि आसान अक्सर मुश्किल होते हैं। टाइप ए का एक क्वेश्चन और देखिए, बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सवाल किया गया है, विच इज़ नॉट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। वही बात, उसी की दूसरी एग्जाम्पल देखें, उसने सिनोनिम नहीं पूछा, हालांकि सिनोनिम इन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है विच इज़ नॉट द सिनोनिम। कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका सिनोनिम नहीं है, और वर्ड है लव। अब बताइए लव का सिनोनिम कौन सा नहीं है। अफेक्शन, ये लव का सिनोनिम है। इंटीमेसी, ये भी लव का सिनोनिम है। एडोरेशन, ये भी लव का सिनोनिम है। हैट्रेट, ये लव का एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है। तो यहाँ ये आंसर होगा। लिहाजा सोच लीजिएगा, वो सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, या नॉट कह रहा है साथ में। तो नॉट कहने से बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा आइडिया। तो ये कौन से टाइप थे? टाइप ए, इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, इनको तो आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। और अब आइए टाइप बी, दे आर इजी टाइप ऑफ एमसीक्यूज। ए क्या थे? वेरी इजी, और बी क्या है? इजी, बट नॉट वेरी इजी like type A. Solve them carefully. Try to give the right answer by eliminating the wrong ones. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में आप रॉन्ग वंस को एलिमिनेट करते जाइए तो आप राइट की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, टाइप सी पे आइए।
टाइप सी क्या है? दे आर मॉडरेट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ MCQs। ये दरमियाने औसत दर्जे के डिफ़िकल्ट MCQs हैं। दे आर वेरी लेंथी एंड कैलकुलेशन बेस्ड, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी भी हैं, 4-4, 5-5 लाइंस पर लिखे हुए होंगे और इनमें कैलकुलेशन भी मौजूद होगी, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कैलकुलेट एंड गिव द आंसर। लीव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट, यानी पहले जब आप फर्स्ट टाइम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टाइप ए को कर लीजिए, टाइप बी को भी कर लीजिए, वेरी इजी भी हो गया, इजी भी हो गया। मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट हैं, जिनमें MCQs हैं और आपको लगता है कि इसमें टाइम लगेगा, छोड़ दें, इनको छोड़ें। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा इसको सॉल्व करेंगे इन स्किप्ड क्वेश्चंस को, तो यहाँ इनको हम देखेंगे, ठीक है ना। सॉल्व देम इन द सेकेंड राउंड। टाइप सी क्वेश्चंस करते वक्त आप जब इन क्वेश्चंस को रीड करोगे और जब ये मुश्किल लगेंगे और आपको इनको स्किप करोगे और इनको छोड़ देंगे, तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके सबकॉन्शियस में, आपके लाशऊर में महफूज रहेंगे। और जब आप आगे मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, तो ये मालूमात जो आपके सबकॉन्शियस में मौजूद है, ये आपके काम आ जाएगी और आपका जहन साथ ही साथ वर्क करना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप नेक्स्ट राउंड में इनको सॉल्व करने जाएंगे, तो आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा कि इस किस्म के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अब आइए चौथे टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप डी। दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ MCQs, ठीक है ना। इनका भी परसेंटेज है, ये भी पूछे जाएंगे। यू डोंट नो द आंसर, आपको पता ही नहीं है ऑप्शन A, B, C, D में से क्या आंसर करेक्ट है। इवन यू कैन नॉट एलिमिनेट द रॉन्ग वंस, आपको ये भी नहीं पता इनमें से रॉन्ग कौन से हैं कि इनको निकाल कर मैं राइट की तरफ जाऊं और 4 में से 3, फिर 3 में से 2, फिर 2 में से 1 करके उसको आंसर दूं। इनको आप पहले राउंड में सॉल्व मत कीजिए, इस वक्त आप इनको छोड़ दीजिए। दे विल बी सॉल्व इन सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, क्योंकि इजी क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में हो गए, ठीक है।